So what is a display device and all? So display device is where the graphics will come into play, and there are many display devices, what is called as an output devices and all. And we talked about CRT. We talked about last time the CRT. We had know the random scan, raster scan, color, DVST, flat panel, plasma, LCD, and many more are there, which you will see. Now in a CRT, we said we have an electron gun, which is firing, and there is a control grid in front of electron gun. What will control grid do? It will only create a one stream of electrons, and rest it will cut off. So this electron grid will control all these electrons coming from this electron gun, and only this will go. And then there are some anodes which will either horizontal or vertical. We know they will control that grid, either it can go up and down or left or right. Okay, so that जैसे ये स्क्रीन अगर है, इस स्क्रीन के ऊपर CRT अगर है, उसको करना है तो इसको फायर करना है, जहां जहां पिक्चर बनानी है वहां पे इलेक्ट्रॉन गन से फायर मारना है. So that means I not only have to move this gun towards left and right, also move towards up and down, because I will do this line, fire all the time, come back, fire the guns, come back, fire the guns, and I can do it in a whole thing. So this is focusing system which controls that, right? And where the electron starts on a phosphorus, because we have phosphorus coated screen, so wherever the electron gun hits on the phosphorus coated screen, there comes the light, and there you will see that picture. So depending upon which color, which picture you have to, so you need to have a color CRT, okay, where we have 3 guns now, not one color, but we have 3 guns. And I told you there are 2 mechanisms to do this, either it's a beam penetration and shadow mask. What is the difference? Because beam penetration technique is used for the vector graphics. In vector graphics, I told you, the picture is to be drawn anywhere on a screen. It's not like the pixels. You paint this pixel, this pixel, this pixel. No, wherever the line comes, just do it there only. That much of only. यानी कि अगर आपकी line, for example, ये अगर हम pixel बनाएंगे, ये अगर आपकी line जो है इतनी पतली है, जो मैं ये बना रहा हूँ पतली है, pixel इतना बड़ा है, ठीक है? अगर आपको पिक्सल वेक्टर raster graphics है, raster graphics will do what? It will color this whole pixel. It will color this whole pixel. लेकिन जो आपका raster graphics है, raster graphics will not color the whole pixel, rather it will color only that much. जो line है बस उतना ही color करेगा. You understand? जो आपका वेक्टर ग्राफिक्स है वो इस पूरे पिक्सल को कलर नहीं करेगा, वो बिल्कुल सिर्फ इसी लाइन को जहां से जा रही है उसी को कलर करेगा. एक तो वो बात. दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास आई एम यूजिंग दिस टाइम द माउस टू ड्रॉ इट, देखिए दूसरी बात ये होगी कि अगर मेरा जो लाइन है, अगर मेरी जो लाइन है वो 2 पिक्सल्स में जा रही है, जैसे ये ऐसे जा रही है एक, अब ये पिक्सल इस पिक्सल में भी जा रही है और इस पिक्सल में भी जा रही है. सो आपका raster ग्राफिक्स दोनों पिक्सल्स को कलर करेगा, इसको भी कलर करेगा पूरा और इसको भी कलर करेगा. लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स ऐसा नहीं करेगा. वेक्टर ग्राफिक्स को स्क्रीन के ऊपर जहां से लाइन है बस वही करना है. तो इसका मतलब यह है कि वो पिक्सल्स के हिसाब से काम नहीं करेगा, बल्कि वो मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से काम करेगा और एग्जैक्टली जहां पे लाइन है वहीं पे कलर करेगा, जो वेक्टर ग्राफिक्स है. समझ में आ रही है पक्के से? सो इसलिए जो हमने क्या बीम पेंट्रेशन में क्या किया, हमने हमारे बीम पेंट्रेशन टेक्निक है. बीम पेंट्रेशन टेक्निक जो हमें लगेगी वो लगेगी हमें रैंडम ग्राफिक्स में या वेक्टर ग्राफिक्स में. और जो आपका पिक्सल वाला मसला है जिसमें हम शैडो मास्क करते हैं वो लगेगा हमें रास्टर ग्राफिक्स में. और एक चीज याद रखना है, जो रास्टर ग्राफिक्स है, जो कौन है, जो रास्टर ग्राफिक्स है उसमें जो पिक्चर्स है, उसमें कौन है, उसमें जो पिक्चर्स है वो उतने शार्प नहीं आएंगे जितने कि वेक्टर ग्राफिक्स में आएंगे.
लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स में हम एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये सारी एडिटिंग वगैरह हो जाएगी इन द रास्टर ग्राफिक्स। ओके, और अगर आप बीम पेंट्रेशन से आप वेक्टर ग्राफिक्स बनाओगे उसमें सिर्फ 4 ही कलर्स आपके पास आएंगे, लेकिन शैडो मास्क में आपको मिलियंस ऑफ कलर्स आ सकते हैं। तो बीम पेंट्रेशन में कुछ लिमिटेशंस है आपकी, लेकिन बीम पेंट्रेशन जो है वो स्क्रीन के कहीं पर भी आपको पिक्चर बना के देगा। ऑन स्क्रीन एनीवेयर द पिक्चर कम्स इन बीम पेंट्रेशन, बट इन केस ऑफ शैडो मास्क where it is of pixels, आपको पिक्सेल्स ही बनाने पड़ेंगे, पिक्सेल्स पे ही कलर करना पड़ेगा। so when you color the pixels basically, so definitely the picture will not come that sharper if you zoom out, if you zoom जैसे फोटोशॉप में हमने किया, so फिर वो पिक्सेलेटेड हो जाती है, दूर दूर हो जाता है ना पिक्सेल्स, तो उससे वो पिक्चर थोड़ी क्वालिटी खराब हो जाती है, और जितना हम दूर दूर जाएंगे तो उतना वो उसको होता रहेगा। Do you understand what I'm saying? So बीम पेंट्रेशन में होता क्या है कि वो 2 स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन में 2 होते हैं, आउटर वाला आपके पास ग्रीन है, इनर वाला ग्रीन है, आउटर वाला रेड है। तो उसमें क्या होता है कि आपने कितनी दूर तक कितनी स्ट्रेंथ की बीम लगाई, वो अंदर कितनी घुसेगी, इस ग्लास के अंदर कितनी घुसेगी वो। ओके, क्योंकि हमारे पास 2 ही कलर्स हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, इनर लेयर आपकी ग्रीन है और आउटर लेयर आपकी रेड है। आउटर लेयर इज रेड, इनर लेयर इज ग्रीन, यानी कि मोटा गिलास है ये। ठीक है, इसके इनर लेयर जो है ये रेड है और आउटर लेयर क्या है, ग्रीन। अब अगर फर्ज कीजिए कि आपकी इंटेंसिटी लो थी, उसने स्ट्राइक किया सिर्फ इसको, अंदर नहीं घुसा, तो वो रेड कलर देगा। अगर इसकी इंटेंसिटी फुल है, ये इस ग्लास के अंदर पूरा घुसा और इसको ग्रीन तक गया, सो ये कौन सा देगा, ग्रीन कलर। लेकिन अगर इंटेंसिटी को मेंटेन किया तो ये 2 और कलर देगा, यानी कि अब ये जो बीम है वो थोड़ी अंदर तक गई, ना पूरा ग्रीन ना पूरा रेड, सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड देगा, यानी कि ये देगा हमारे पास येलो एंड ऑरेंज कलर। तो 4 कलर्स कुल मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि पिक्सेल्स का किस्सा नहीं है, स्क्रीन के कहीं पर भी ये हो सकता है। जहां पर मेरे को लाइन मारनी है, स्क्रीन का कोई भी हिस्सा जो होगा वहां पे ये लाइन मारेगा, या वहां पे वो ये 4 कलर्स की लाइन कर सकता है, स्क्रीन के कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक्स है। लेकिन जो इसमें लिमिटेशंस है वो ये है कि एक तो पहले कॉस्टली है, दूसरा इसकी लिमिटेशन है कि कलर सारे नहीं मिल रहे मेरे को, मुझे कलर्स ही नहीं मिल रहे सब। सो हाउ टू गेट ऑल दीज कलर्स? So for that we have what is called as a shadow mask. तो ये इसके मेरिट्स है। It is inexpensive to produce colors in random scan, ये random scan monitors में आएंगे। Inexpensive है, लेकिन इसमें 4 ही कलर्स होंगे। ठीक है, quality picture produced by this technique is not good, तो जाहिर सी बात है जब 4 ही कलर्स आपके पास होंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी उस हिसाब से, मतलब कलर्स के हिसाब से, क्योंकि आपके पास 4 ही कलर्स है ना। अब मेरे पास मिलियंस ऑफ कलर्स यहाँ से आ सकते हैं इफ यू हैव अ शैडो मास्क टेक्निक। शैडो मास्क टेक्निक सारे ही करते हैं, जैसे सीआरटी हो गया, टीवी हो गया, आपका मॉनिटर हो गया। ठीक है, उसमें 3 डॉट्स होते हैं, तो फॉस्फोरस के डॉट होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, यानी कि जैसे ये है, इसमें 3 गन्स होते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे कलर दिखाया है गन्स को, गन्स में कलर नहीं होता, ये जो गन्स है ये सेम ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फायर करेंगे, ये भी, उसमें कलर नहीं होता। ये अब दिखाया गया है कि ग्रीन के लिए अलग गन है, इसके लिए अलग गन है, ब्लू के लिए और रेड के लिए अलग गन है, हालांकि ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ये शैडो मास्क हमने दिए हैं, शैडो मास्क क्या करेगा काम कि जहां जहां मुझे मेरा पिक्सल है वहां पे यहाँ सुराख है, और यहाँ पे सुराख नहीं है, जो ये एरिया है ना इसमें मत सुराख है, तो इस एरिया में कलर ही नहीं हो सकता, सिर्फ इन एरियाज में कलर हो सकता है जहां जहां सुराख है ना। और जो ये सुराख है ये ओपनिंग पूरी नहीं है। ठीक है, इसमें अंदर, इसके अंदर 3 शीशे लगे हैं, जैसे ग्लास के 3 लगे हैं, 3 कलर्स के ऐसे। ठीक है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यानी कि एक पिक्सल जो आपका है वो 3 कलर्स का बन सकता है। अब इनकी अलाइनमेंट, जो गन्स के अलाइनमेंट है वो इन डॉट्स के अलाइन के साथ है। जैसे मेरे को
ब्लू को खाली करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू है तो सिर्फ इस पे आएगा इलेक्ट्रॉन, अगर खाली रेड करना है तो इस पे आएगा, अगर ग्रीन करना है इस पे आएगा, अगर कॉम्बिनेशन करनी है तो कुछ रेड को, कुछ ब्लू को, कुछ ग्रीन को, जितनी इंटेंसिटी, अगर आप फुल इंटेंसिटी रेड करोगे, फुल इंटेंसिटी ब्लू, फुल इंटेंसिटी ग्रीन, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ब्लू ग्रीन देगा एंड दैट विल बी द ब्लैक। ठीक है, इसी तरह से फुल इंटेंसिटी के बजाय आप लेस इंटेंसिटी करोगे, हल्का हल्का, तो हल्का हल्की शेड आएगी सबकी। इस हिसाब से आप इन 3 कलर से कलर बहुत सारे बना सकते हो, है ना। So we can create many colors. So we have wider range of colors than beam penetration. लेकिन beam penetration किस में लगेगी? In case of random scan. In case of rasters, या vector या random scan से beam. हाँ, जो आपकी ये है shadow mask है, ये लगेगी पिक्सल, क्योंकि यहाँ पे जो दिखेंगे आप ये गोल गोल पिक्सल्स है, यहाँ पे पिक्सल्स इल्यूमिनेट होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट जो स्क्रीन है वहां पे नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि ये अगर आपकी ये है, ये पिक्सल्स है फॉर एग्जांपल, और अगर लाइन इसमें से गुजर रही है तो ये पूरा पिक्सल इल्यूमिनेट होगा, इस पूरे पिक्सल को हम लाइट देंगे, ठीक है, इल्यूमिनेट करेंगे। सो उसमें स्टेयरकेस इफेक्ट वगैरह मैंने कहा वो हो जाता है फिर। ठीक है सर, ये फिर इसकी लिमिटेशन हुई किसकी? सर, हाँ, शैडो मास्किंग की। ये तो लिमिटेशन है ही रास्टर, सब रास्टर ग्राफिक्स की। लेकिन जब आप ये लिमिटेशन आती है जो आप जूम इन करोगे, जब बहुत जूम करोगे, ठीक है, उसको भी फिर हमने रिमूव किया है थोड़ी सी ये लिमिटेशन, क्योंकि हम ज्यादा पिक्सल्स को पर इंच डालते हैं, बहुत ज्यादा पिक्सल डाल रहे हैं। यानी कि पहले हमारे पास अगर ये एरिया था, इसमें 1 पिक्सल था, अब इसी एरिया में मैं पिक्सल्स बहुत सारे कर रहा हूँ। Wat nou near to hood is random scan. कैसे मैं कहता हूँ exactly पिक्सल कैसा लॉकुट, ये तो पिक्सल ज्यादा में तरह तूत अच्छा ये बराबर तो लाइन ही नहीं कैसे, चलिए मैं वो बोर्ड एरिया करने जरूरत कहीं। So I will remove this limitation by putting a more pixels per inch, PPI is what we call it, PPI. So more pixels per inch will give me the clearer picture, will give me the brighter picture, but I have here the colors, which was not possible in case of the beam penetration method or random scan method. ठीक है, अवश्य पता क्या अगर काम कर फोटोशॉप वगैरह वुचान यह सोरे पिक्सलन पे काम कर, अगर पिक्सलन पे हैंडल कहें वी कैन नॉट एक्चुअली क्रिएट दैट। एंड सेकेंडली और इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको इमेज को रिप्रेजेंट करना, बिकॉज वी वर्क इन अ बाइनरी डिजिटल, वी वर्क इन zeros and ones and all. युस ये पिक्सल बासान यह पिक्सल जीरो पिक्सल ये पिक्सल यह डब ही बना लॉकेट लॉकेट डब बना माइन्यूट माइन्यूट डब, ठीक है, मगर बह हेक रिप्रेजेंट कर 0 and 1, 0 गो अत पिक्सल्स मज कि 1 गो कहीं 1 गो इल्यूमिनेट, 0 गो कहीं गो बह हेक अत पत बन बिट मैप, मे हेक सो रिप्रेजेंटेशन इन मेमरी गसित ईजी गस ना। युस हो क्या रास्टर और वेक्टर स्कैन तक मैथमेटिकल फॉर्मूला सी बनाऊं, तक चल यह कस सह बन कॉम्प्लिकेटेड पत स्टोर कर वगैरह, तथ पे हेको पे एडिटिंग कर ज्यादा कहें, ये हेको पे एडिटिंग कर स्टोरेज असल गई। अवे करान सारे जायन ये रास्टर स्कैनिंग, वेक्टर स्कैन करान कहें। गेटिंग? यस सर। Okay. So we have 3 electron guns, one for each dot. बेस shadow mask grid, which shadow mask using बराबर तथ पे त्राव इलेक्ट्रॉन, अगर कह थोड़ा स्ट्रे गो तो shadow mask रुकाव, shadow mask बुथ प्लेट लगे गज गो, अगर कह रे और योर गई सह त्रावस पे सह मज बग सह प्यूत गोद तपरी योत नी गो सह पिक्सल योत गस एलिमिनेट, बाकी गस कहें। अवे वन shadow mask क्या सह मास्क तमी मास्क के हिसाब से अलाइन करान हूँ गन्स, तो सह तमी हिसाब से पिक्चर पे क्रिएट करान। So you can read this. This is again telling the same thing. Then there is DVST, direct wave storage tube. Yath maz problem be using screen for example CRT monitor and pat is karan picture ka display man core mein electron gun trayte eye picture ka per screen as per magar momally ke time gasti ye khatam ये persistent ke ye roz na idan go me picture bana mein and pat mein be bana continuously
या तो वन रिफ्रेश रेट अक्सर मॉनिटर्स कर सेट रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज 80 हर्ट्ज कर अक्सर अगर तुम सनी मॉनिटर तुम रिफ्रेश रेट कर क्या राइटी CRT मॉनिटर कर तुम बनो इमेज यह इरेज इत रैम तुम डेटा मज बरान यह चार्ज ग लूज यह थवानी पे तुम कर तथा बे चार्ज दिन सह थवन तन सह डेटा इथे पे यह पिक्चर थवन खतर मे पे बे कर क्या सह पिक्चर थवन खतर मे पता तो इलेक्ट्रॉन्स बे दी गो पिक्चर बनो मैं I want to make a picture and I'm firing those guns and created that picture on the screen. Now this picture will not stay there. To stay there, so picture is then so text is then whatever which is on screen now coming. To maintain that on the screen, I have to again and again give that voltage and current and electricity, and this electrons should strike that screen continuously. That's called a refresh rate. That's called a refreshing. So तमे खतर कर मे काम मे कोर इलाज था DVST direct wave storage tube इस क्या करा काम so we are saying in raster scan display we do refresh screen ना ताकि इस करो maintain so image आपको image बनावनी बेगो सो image पता maintain था ठीक है इस चीज का तो you are painting and you created that on the screen बनाओ मगर ये गसान गब इस कलर करो गब तो बे पेन तुलन तो सती बे कर अत पे पत कर ताकि ये गब गो बे बनोस यह बना बे गोट तु कर बे अत पे बना बे गोट तु बे बना यह गई रिफ्रेश यह इलेक्ट्रॉन्स बे फायर करें रिफ्रेश करने खतर DVST कोर तम से इलाज अस क्या कोर कि सो इमेज करने खतर बना ज गन्स अख बनो प्राइमरी गन ब्याक फ्लड गन प्राइमरी गन हाई इंटेंसिटी गन यूज इमेज बनाए स्क्रीनस पे फ्लड गन पत पथ किन त्रान लो इंटेंसिटी वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स यह मतलब पिक्चर बने ना ये पे मेन गन तुम प्राइमरी गन तम हाई इंटेंसिटी बनो तम इमेज फ्लड गन पथ किन कंटिन्यूसली लो इंटेंसिटी अत पे त्रावान इलेक्ट्रॉन सह दिवान डिम गसन कहें गो सह थोड़ा परसिस्टेंट और तम पे प्राइमरी गन सती पे बे सो हाई इंटेंसिटी त्राउन तो बे तक लगा पे टाइम थोड़ा फ्लिकर ग अगर तुम CRT मॉनिटर तक फ्लिकरिंग ग थोड़ा ग सह मज ये अगर रिफ्रेश रेट सही कहें तक मज ग इमेज या फ्लिकरिंग ये मज ग फ्लिकरिंग कहें क्या पे किन सती हुस चोन हु फ्लड गन सह कंटिन्यूसली सह लो वोल्टेज अत त्रावान सही कि तुम पेंटिंग करान यपर ब्या नफर तम हल्क पेंट सह मगर सत बे करान रचा रचा जीरा जीरा दिवान ताकि यह गोस फेड गसन कहें तो समझ वन DVST direct wave storage tube. We have 12 बज गए तो ऐसे ऊपर की आमद को सर ठीक है. So we continue this, but you will read about what is flat panel displays. Now today's we don't have CRTs and all, we have flat panels. Okay, तथ मज emissive non emissive ये सोच बुता ये and you will do yourself. Then there is plasma display, plasma panel display in obsolete गए आजकल ये आयो मंज plasma panel गए obsolete पत इन छन मन चला क्या वन LEDs चलान LCD आ पत ठीक है तम पे आव LED कहें LEDs आय पत ठीक है वन आजकल QLED displays and all. So you will read about flat panel displays in general. Try to get a knowledge what is flat panel display, what is LCD, what is LED. अगर तो आज TV शो ना तो तज बना इछा QLED इछा LED इछा ई क्या पच तमस बना इछा HD इछा full HD कि इछ 4K कत समझ में फर्ज करो तो TV अन ठीक तमस तु गोड वचान ज चीज अब तो डिस्प्ले ये कम डिस्प्ले बनोमुत कम इछा QLED इछा ऐसे LCD इछा LCD मा वन LCD चलान आजकल कहें वन LEDs तथ मज हाई एंड डिस्प्ले QLEDs ठीक है गो पत बे क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी अगर HD इछा फुल HD कि यह 4K ठीक है आजकल 4K TVs. सो यम सवाल पृस पगह तुह पगह क्लास पगह क्लास डिस्कशन पगह करो पान डिस्कस तुम वनो मे ज्यादा ज्यादा पगह करो तुम कत ज्यादा समझ कि फ्लैट पैनल डिस्प्लेज LCD LED QLEDs एंड ऑल तिम क्या गई बे
resolution HD, full HD, SD, 4K ti kya go tihins resolution kya pagai tu note banayit and we will all discuss with me theek hai ji. So see you guys tomorrow. Ho aapne ki na, so see you guys tomorrow inshallah. Till then Inshallah. ma salama, Allah hafiz. Okay, many